वो अकेला रह गया और वो फटने के वक्त एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। और याकूब क्या हुआ, अकेला रह गया और एक शख्स तो फटते वक्त से कुश्ती लड़ता रहा कि किसी तरह ये तंग आ जाए, किसी तरह इसको मैं शिकस्त दे दूं। मगर हम इस बात को जानते हुए कि जब आप कुश्ती लड़ते हैं कुश्ती जीतने का तरीकाकार क्या है, मुकम्मल तैयारी, फुर्ती, ताकत, जोर, तो आप जीत पाएंगे। अगर आपके अंदर फुर्ती नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर जोर नहीं है, तो आप कुश्ती लड़ नहीं सकते। तो जाएंगे मगर हार कर आ जाएंगे। तो लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने जोर को, अपनी ताकत को चेक करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कितना जोर है। ऐसा ना हो कि मैं अपने से ताकत मार के साथ जाकर लड़ना शुरू कर दूं और हार कर शिकस्त खा के वापस आ जाऊं। तो यहाँ हम देखते हैं खुदा के कलाम में खुदा के बंदा याकूब नबी, आप जानते हैं याकूब नबी के बारे में? इसहाक के दो बेटे थे, ठीक है, एक बड़ा ईसाऊ और छोटा भी क्या, चंद मिनटों का फर्क, चंद मिनटों का फर्क। तो हम इस बात को देखते हैं कि याकूब जो है वो खुदा के प्लानिंग में था। याकूब जो है वो खुदा के प्लानिंग में था, खुदा के मंसूबे में था। और अगर हम गौर करें उनकी जिंदगी पर, तो ईसाऊ जो है वो बड़ा है, याकूब छोटा है। उनकी जिंदगी पर गौर करें तो दोनों जो है एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद है, यानी कि दोनों एक ही वक्त में अपनी मां के रहम में है। वहां भी बड़ी हलचल है, वहां भी बड़ी हलचल है उनकी पैदाइश के वक्त। तो जब दोनों पैदा हो चुके, इसहाक किसको बरकत देना चाहता था? ईसाऊ को, जो कि बड़ा है। इसहाक जो है वो ईसाऊ को बरकत देना चाहता था, मगर खुदा किसको बरकत देना चाहता था? इस बात पर गौर करना है हमने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मंसूबा बांध लेते हैं, कोई मंसूबा बना लेते हैं, हम उस पर कामयाब होते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं उस मंसूबा के लिए, बड़े उस मंसूबा के लिए हम भाग दौड़ करते हैं, मगर वो मंसूबा फेल हो जाता है। मगर
وہ منصوبہ فیل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں. خدا اس منصوبہ میں شامل نہیں ہوتا. آج ہم یہاں اس بات کو دیکھتے ہیں. عیساؤ جو کہ بڑا تھا، اسحاق اسے پیار کرتا ہے. چھوٹا جو ہے اس سے کون پیار کر رہا ہے؟ اس کی ماں. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا ایسے بچے جو اپنی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ گھر کے کام میں اپنی ماں کا بڑا ہاتھ بٹاتے ہیں. سبزی کاٹی تھی، صفائی کر لیں، کھانا پکانا. تو ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا بہت اچھا ہے. یعقوب کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. یعقوب کے ساتھ بھی ایسے تھا. اس کی ماں بھی اسے بہت پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا. مگر اسحاق جو ہے وہ اپنے بیٹے عیساؤ کو پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے شکار مار کر لاتا تھا اور اسے کھانے کے لیے بہترین کھانا اس کے سامنے پیش کرتا تھا. تو اسحاق نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ میں تو برکت دوں گا اسے، کیونکہ یہ بڑا بھی ہے اور برکت اسی کو ملے گی. تو میرے عزیزو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کے جو منصوبے میں ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ خدا کے منصوبے میں کون ہے. اپنے بیٹا سے کہا کہ جا شکار مار اور پھر جا کر میرے لیے لذیذ کھانا تیار کر، تاکہ آج میں تجھے برکت دوں. باہر یعقوب کی ماں سن رہی تھی. یعقوب کی ماں کیا کر رہی تھی؟ سن رہی تھی، کیونکہ وہ یعقوب سے پیار کرتی. اس نے کہا کہ ایسا کر، تیرا بڑا بھائی عیساؤ کیا کرنے گیا؟ شکار لینے کے لیے گیا ہے مار کر، تاکہ میں اس کو پکاؤں اور وہ پھر تیرے باپ کے سامنے اسے رکھے اور اسے برکت دے. مگر تو ایسا کر، جلدی سے جا اور بکرا ذبح کر اور جلدی سے میرے پاس لے کر آ، اور میں تجھے بنا کر دوں گی اور تو جا کر اس کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے رکھنا اور وہ تجھے برکت دے دے گا. اس نے کہا کہ میں کیسے ایسا کروں؟ میری اور اس کی بات کرنے کا بھی فرق ہے اور اس کے جسم پر بال ہے، میرے نہیں ہے. اس نے کہا تو بس جا، جو میں کہتی ہوں وہ کر، نہیں تو تیرا بڑا بھائی آ جائے گا، جلدی کر. اس نے ایسے کیا. اس نے جا کر جلدی سے ذبح کیا اور لا کے ماں کو دیا. اس نے اسی جو بنا تھا اس کی کھال اتاری اور یہاں جہاں اس کے ہاتھوں پر یوں کر کے اسے باندھ دیا تاکہ بال نہ دلائے. سو میرے عزیزو، اس نے کھانا بنا کر دیا اور جا کر اپنی باپ کے سامنے اس نے رکھ دیا. اور جیسے اس نے رکھا، اس نے کہا تمہیں کون؟ اس نے کہا میں عیساؤ ہوں. آپ کون؟ آپ کون؟ یعقوب. اس نے کہا کہ میں عیساؤ ہوں. اس نے کہا اچھا، آواز تو نہیں لگ رہی، ادھر آؤ میرے پاس. جب اس کے پاس گیا تو اس نے چیک کیا اس کے ہاتھ، پہلے سے تیاری اس کی ماں نے اس کے ہاتھوں پر باندھی تھی کھال بالوں والی. اس نے کہا اچھا، آواز سے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ اسحاق کی نظر کمزور ہو چکی تھی، دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ صرف محسوس کر سکتا تھا. تو یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے برکت دینی ہوتی ہے،
جب خدا نے بلیس کرنا ہوتا ہے تب خدا جو ہے کسی طریقہ سے اس منصوبہ کو پورا کرتا ہے. اگر ہم جسمانی طور سے دیکھیں تو ہم کہیں یہ تو دکھ ہے, یہ تو کیا ہے, دکھ ہے. یہ کیا کیا خدا نے, یہ تو دھوکہ ہے, دھوکے سے برکت دے دی. مگر خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا, بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا, خدمت کرے گا. ہلیلویا, ہاللویا. تو میرے عزیزو, یعقوب جو ہے کھایا اور برکت دینا شروع کی. یعقوب نے کھایا اور برکت دینا شروع کر دی. یہ برکت آپ اپنے گھر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, آگے تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا برکت ہے. ٹھیک ہے, تو برکت دینا شروع کی, اور جیسی برکت اس نے دی تھوڑی دیر کے بعد برکت دے کے باہر گیا تو عیساؤ بھی آ گیا. پھر کیا ہوا, عیساؤ بھی آ گیا. اس نے کہا کہ اے باپ کون ہے, اس نے کہا میں عیساؤ ہوں. دیکھیں, اگر تو عیساؤ ہے تو جو پہلے تھا وہ کون ہے؟ باپ عیساؤ تو میں ہوں. برکت دے, یہ لکھا تھا, اس نے کہا کہ برکت تو میں نے دے دی, برکت تو میں نے دے دی. اس نے کہا کہ باپ میرے لیے بھی برکت ہے. اس نے کہا میرے لیے برکت ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص خدا کے منصوبہ میں ہوتا ہے, خدا کسی بھی طرح سے اسے گھیر کر لے آتا ہے. عیساؤ منصوبہ میں نہیں تھا, عیساؤ منصوبہ میں نہیں تھا, مگر یعقوب. یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, جب ہم نے آیت پڑھی تو کیا لکھا ہے, اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور وہ پڑھتے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. تو کشتی خدا سے لڑنا آسان بات, خدا سے کشتی وہی لڑ سکتا ہے جس کے پاس برکت ہوتی ہے. ہلیلویا, ہاللویا. جس کے پاس بلیسنگ ہوتی ہے, جس کے پاس زور ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا, کشتی لڑنا شروع کی, اور خدا نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, برکت میں تجھے دیتا ہوں, برکت میں تجھے دیتا ہوں. وہ برکت کون سی تھی جو اس کے بعد میں سے تھی. اب برکت کون دینے لگا ہے؟ خدا. ہلیلویا, ہاللویا. جو برکت خدا دیتا ہے وہ لا تبدیل ہوتی ہے. ایک برکت ہوتی جو باپ کی طرف سے, اب آسمانی باپ برکت دینے لگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تجھے برکت دیتا ہوں, مگر تیرا نام اب سے یعقوب نہیں رہے. اب سے تیرا نام یعقوب نہیں رہے گا, کیونکہ اس کا مطلب کچھ ٹھیک نہیں. یعقوب کے نام کے مطلب ہے اڑبنگا مارنے والا. تو خدا نے کہا کہ تیرا نام اب سے یعقوب نہیں ہوگا, میں تجھے برکت دیتا ہوں اور ساتھ میں تجھے ایک نیا نام دیتا ہوں. ہلیلویا, ہاللویا. اور کیا نام دیا خدا نے؟ خدا نے کہا کہ آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا. ہلیلویا, ہاللویا. خدا نے کیا کہا کہ آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا, یعقوب نہیں. تو آپ اس بات کو سمجھے کہ اسرائیل کیا ہے. اسرائیل یعقوب کا نام ہے. خدا کا شہزادہ. کیا مطلب ہے؟
खुदा का शहजादा। तो जो खुदा का शहजादा है तो उससे जो पैदा होंगे वो कौन होंगे? शहजादे और शहजादियां। हालेलुया। हालेलुया। जो उससे पैदा होंगे वो कौन है? शहजादे और शहजादियां। क्यों? इसलिए कि जो बरकत खुदा ने याकूब को दी वो ही बरकत उनके अंदर ट्रांसफर हुई और वो 12 बेटे इसके पैदा हुए, 12 कबीले बने, जिसको आज हम इसराइल कहते हैं। आज भी वो मौजूद है, यानी कि याकूब आज भी मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रख लेना है कि जो खुदा के मंसूबा में है, चाहे वो बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, बुजुर्ग है, जिसको खुदा जो काम देता है, अगर वो उस काम से भागता है तो वो खुदा के मंसूबा में नहीं, खुदा के मंसूबा से हट गया है। खुदा के मंसूबा में कौन है? जो खुदा के साथ है। अय्यूब नबी को अगर हम अपने सामने रखें तो अय्यूब नबी कौन है? खुदा के मंसूबा में। और जो खुदा के मंसूबा में, खुदा उसे चेक नहीं करता है। कहां तक कि मेरे साथ है। तो अय्यूब को खुदा ने देखा, अबलीस से कहा कि जा इसे जाकर आजमा ले, बच्चे भी मार दे इसके, सब कुछ कर सकता है मगर इससे तो टच नहीं करना, इससे तो कुछ नहीं कर सकता। अबलीस ने सारा कुछ उसका खत्म कर दिया, तो गुर्बत की हालत में आ गया, गरीबी की हालत में आ गया, अपने दोस्तों के ताना का शिकार हुआ। उसके जो 3 दोस्त थे उसे आकर रोज ताना देते थे, कहते थे कि भाई क्या तूने गुनाह कर लिया, जा जाके तौबा कर। उनको ये नहीं पता था कि ये खुदा के मंसूबा में है, जो कुछ ये इसके साथ हो रहा है ये खुदा के मंसूबा में है। तो जब तक उसकी मयाद थी तब तक अबलीस उसे चेक करता रहा, उसे आजमाता रहा, और जब तक आजमाता रहा अय्यूब नबी कायम रहा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही वक्त पूरा हुआ, उसके बच्चे जो मर गए थे, उसका माल मवेशी जो खत्म हो गया था, खेत खत्म हो गए थे, सारा कुछ दोबारा से उसे खुदा ने दे दिया। बच्चे भी दे दिए, माल मवेशी भी दे दिया, इज्जत दौलत भी, सब कुछ से वापस लौटा दिया, क्योंकि वो खुदा के मंसूबा में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो क्या था? खुदा के मंसूबा में था। अब हमने इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि जो खुदा के मंसूबा में होता है, खुदा उससे क्या करता रहता है? चेक करता रहता है। चेक किससे करवाता है? अबलीस से। चेक किससे करवाता है? अबलीस से। अबलीस आ कहता है आ तेरा बंदा जो है ये देना ठीक चल रहा है, मगर मुझे देखी कि मैं तेरा इंतजार कर। इस तरह अय्यूब से कहा, उसने कहा ठीक है जा। कलाम में लिखा है, मत्ती के अंजील में और लूका के अंजील में, यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ शमौन, अबलीस ने तुम लोगों को मुझसे कहा कि गेहूं की तरह पटके, मेरे तो भी नहीं मारता, कपड़े तो लगे
ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मार मार के। कहता है अबलीस ने तुम लोगों को क्या किया है, मांग लिया था कि गेहूं की तरह कट के, मगर मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता। खुदा का हाथ जब पीछे होता है आपके या जिस किसी के भी दोस्त के मनसूबा में, तो पतरस मनसूबा में था, बाकी सारे मनसूबा में थे, तो फिर से वापस आए और खुदा का काम किया। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हमने इस बात को अपने ज़हनों में रख लेना है कि क्या मैं खुदा के मनसूबा में हूँ? हमने अपने आप से पूछना है, क्या मैं खुदा के मनसूबा में हूँ? आगे चलकर मैं खुदा के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अभी चलकर क्या करना चाहता हूँ और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उसके मनसूबा में हूँ? मनसूबा समझते हैं? मैंने सारा बताया। मनसूबा ये होता है कि जैसे हम कोई शादी प्लान करते हैं तो उसके लिए मनसूबे बनाते हैं, कमेटी पावांगा, कमेटी पावांगा ते फलाने महीने से मैनूं मिल जाएगी, और जो मिलेगी वो वाला महीना या वो वाला ही साल शादी का मेरा की ताकि जो कमेटी मिलेगी महीने के एंड दे विच शादी होएगी तो महीने के पहले दिनों च मैनूं कमेटी मिल जाएगी ताकि मैं सारा बंदोबस्त कर लूँ। ये क्या है? मनसूबा। तो खुदा जो है वो भी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मंसूबे रखता है। कोई पता नहीं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे खुदा के मंसूबा में, हो सकता है एक दो मंसूबा में, तो खुदा के काम जो है वही जानता है। जो उसके मंसूबा में है खुदा उसको जाने नहीं देता, कहीं भी नहीं जाने देता। यूना नबी पर गौर करें, खुदा के मंसूबा में भाग गया तरसीस को, जाना कहा था नैनवा को, खुदा ने कहा इधर नहीं इधर। किस तरह लाया, क्या मंसूबा बनाया? फौरन खुदा ने मंसूबा बनाया और मछली को हुक्म दिया कि यूना ने अपने मुंह में, अपने पेट में उसको लेकर वहां उसको फेंकना है जहां मैंने उसको भेजा। वो भाग रहा है। तो यहाँ हम इस बात को देखें कि वो खुदा के मंसूबा में था और खुदा ने उससे काम लेना था, तो खुदा ने दिया। जो खुदा के प्लान में, मंसूबा में नहीं होता वो इधर उधर भागता ही रहता है, और जो प्लान में होता है वो अगर भागना भी चाहता है तो खुदा फिर से उसे ले आता है, इस तरह अब काम में तेरे देता ही, तेरे को ही लेना है। तो इन बातों को हमने समझना है, इन बातों को अपने जहन में रखना है। तो आज हमारे साथ ये सवाल है, अपने आप से सवाल करना है। आज हमने यह खुदा, अगर सवाल करने के लिए हमारे पास वक्त है तो हम रात को आज या जब भी हम दुआ करने के लिए खुदा के साथ शख्सी दुआ में बैठते तो आज खुदा से पूछे, आज खुदा से बात करें, आज खुदा से कहें खुदा मेरे लिए क्या मंसूबा है, मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या तूने मंसूबा बनाया है, मुझे बता, ताकि मैं उस मंसूबा पर चलूं, ताकि मैं उस प्लान को जो तूने बनाया है मैं भी प्लान कर लूं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे तो मंसूबे ही कुछ और होते हैं, फलां खावांगा, फलाना पकावांगा, फलाना ही खावांगा, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है और अच्छी तरह सोना है, हमारा मंसूबा ये होता है।
हमारा मनसूबा क्या होता है? अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, अच्छा तरह सोना है, आराम करना है, आराम की जिंदगी गुजारनी है। ये हमारे मनसूबे होते हैं। और जिनके ये मनसूबे हैं वो नाकाम है। वो क्या है? नाकाम है। और जो खुदा के मंसूबों के मुताबिक चलते हैं, नाकामियां भी जहाँ वो जाता है आसानियां हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जो खुदा के मंसूबा में होता है, तो जहाँ नाकामी होती है वहाँ भी कामयाबियां होना शुरू हो जाती हैं। एक बात और करके खत्म करेंगे। अगर हम यूसुफ नबी पर गौर करें, खुदा के बंदा यूसुफ नबी पर, तो जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उन्होंने कहा नु मार देने, तेनू कट देने, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਖਾ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆ ताकि सानू नजर ना आए। बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। अब गौर हमने ये करना है कि वो खुदा के मंसूबा में था। हालेलुया, हालेलुया। वो उसे कहाँ ले गए? मिस्र में। मिस्र में वो ख्वाबों की ताबीर बताते बताते कहाँ पहुँच गया? महल में पहुँच गया। हालेलुया, हालेलुया। ख्वाबों की ताबीर बताते बताते वो महल में पहुँच गया। फिरौन की जब उसने ताबीर बताई तो फिरौन ने क्या कहा कि मैं तुझे मामूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़े रुतबा पर मामूर करता हूँ। वो क्या बन गया? मिस्र का शहजादा। काम आगे आगे वो पीछे मेरे लिए काम करो, आओ मेरे लिए काम करो। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है, इस बात को अपने जहन में बिठा लेना है कि जो खुदा से भागता है सबसे भागता है। कोई इधर से उसको आकर पकड़ेगा, कोई इधर से पकड़ेगा, कोई इधर से पकड़ेगा, वो आगे आगे और लोग पीछे पीछे। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है। आज का कलाम हमें यही बताता है कि हम खुदा के प्लान में है या नहीं। आज का कलाम यही है कि क्या मैं खुदा की प्लानिंग में हूँ? खुदा ने मुझे प्लान किया किसी काम के लिए, खुदा ने मुझे किसी प्लान के लिए रखा हुआ। अगर रखा हुआ तो आज मैं जाकर खुदा से पूछूंगा या पूछूंगी कि खुदा क्या प्लानिंग है मेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या प्लान किया है, मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए, खुदा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जाकर आज पूछे। अगर हमारे पास वक्त है तो आज हम जाकर पूछे खुदा से, क्या खुदा। जब सैमुअल छोटा था तो खुदा ने उसे आवाज दिया है सैमुअल। वो छोटा था, उसे नहीं पता था क्या करना है। उसने जाकर अपने बड़े खादिम से पूछा कि तूने मुझे आवाज दी? उसने कहा नहीं। फिर आवाज आई, फिर और तीसरी बार उसने कहा कि ठीक है, अब जब तुझे आवाज आए तो तूने क्या करना है? अब जब तुझे आवाज आए तूने क्या करना है? उसने कहना है खुदा तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा बंदा सुनता है। तो सैमुअल जो है बचपन से ही खुदा के प्लान में, सैमुअल बचपन से ही खुदा के प्लान में था। बहुत छोटा था जब खुदा ने उसे आवाज दी और कहा कि आजा। बहुत छोटा था और एक वक्त आया कि वो इस्राएल का गाजी बना, फैसले किया करता।
हम इस बात को अपने सामने रखें और खुदा से पूछिए, खुदा मैं अभी तुरिया रहना है कि मेरा कोई काम भी है, मैनू जो है दुनिया दे सिर्फ खान पीन नहीं खिलाया कि मैनू तेरा भी कोई काम करने नहीं खिलाया। आज पूछिए खुदा से, खुदा मैं तेरा काम भी कोई करना है कि अपने ही काम करिए नहीं। आज खुदा से पूछे, आज रात को जाए खुदा के सामने और खुदा से पूछे, खुदा मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या प्लानिंग है। पूछेंगे आज कौन कौन को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।